بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر بات کرتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا یہاں امن سکون کہ ہم الگ رہ کر اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکیں گے، لیکن پاکستان میں یہ 90 سے لے کے اس وقت تک جن جغرافیوں نے پکڑا ہوا ہے، کبھی زرداری، کبھی نواز شریف، کبھی شہباز شریف، اور درمیان میں 3 سال کے لیے عمران خان آئے، جن کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے اور ان کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کراچی میں جماعت اسلامی کو وہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا، وہ پیپلز پارٹی نے چرا کر اپنا وہاں پہ میئر بنا لیا ہے، اور بلاول بھٹو اب نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم پاکستان پر بھی اپنی حکومت قائم کریں گے۔ نعرہ لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کے پڑولے میں دانے نہیں ہوں گے تو آپ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ووٹر عمران خان کے ساتھ ہیں، نعرے آپ لگا رہے ہیں، تو اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، جرت ہے، طاقت ہے تو الیکشن کروائیں۔ الیکشن کروائیں گے پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ ایسے نعرہ بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں جس طرح کے اب مسلم نون نے اپنی وہ تنظیم سازی کی، کیا بات ہے تنظیم سازی کی، کہ اب یعنی چچا صدر، بھتیجی سینئر نائب صدر، اور اسی طرح سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف نہ ہوتی تو کیا وہ مسلم لیگ کی اس طرح کی لیڈر بن سکتی تھی؟ ناٹ ایٹ آل۔ وہ بے نظیر بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس میں وہ ڈھن، وہ عقل، وہ تمیز اور وہ علم نہیں ہے، جس کی بنیاد پر بے نظیر نے اپنے 2 بھائیوں کو مروایا، اپنے والد کو مروایا، خود مری، اس کے بعد وہ بے نظیر بڑی۔ تو آپ تو ایک دن کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کل انہوں نے ایک بھاشن دیا ہے کہ عمران خان کے بچے باہر ہیں، تو بھائی آپ اپنی طرف دیکھیں، آپ کے بھائی کہاں ہیں، آپ کے والد کہاں ہیں، آپ کے سارے رشتے دار کہاں ہیں؟ اور اگر عید ہوگی تو آپ بھی عید وہیں جا کے منائیں گے۔ اس لیے یہ سارے معاملات وہ ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے پینل میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرزا محمد ادریس صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جمعیت علماء پاکستان کے پیر اختر رسول صاحب، بہت بڑا نام ہے، میں آپ کو بھی یہاں پر اپنے شو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے ذکر اللہ صاحب، ذکر اللہ مجاہد، یہ مجاہد بھی ہیں، یہ بھی آج یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں شروع کرتا ہوں جناب پیر اختر رسول صاحب سے، کیونکہ ان کی آمد ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے۔ تو ابھی یہ داتا صاحب بیٹھے ہوئے اپنی عبادت کر رہے تھے، اس عبادت میں سے اٹھ کر ہی آئے ہیں، میں اس لیے ان کا خصوصی اور مشکور ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں اور اس میں جو علماء کرام کا کردار ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا سیاست بخیر کے اس عظیم پروگرام میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرا پاکستان کے موجودہ صورتحال پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کا پاکستان بنانے میں پہلے بھی بہت بڑا کردار تھا، اور اب بھی انشاءاللہ ہمارے علماء اس پاکستان کو بچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ کل ہی ہمارے پورے پاکستان بھر سے مشائخ علماء اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجلاس ہم نے طلب کر رکھا ہے سنی سیکٹریٹ لاہور کے اندر، ماشاءاللہ، اور اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ پاکستان کو بچائیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو بہت خون دے کر اس کو سجایا ہے، اور اس کے سجانے میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پاکستان کو بچانے کے لیے علماء اور مشائخ پچھلے دنوں میں پیر امین الحسنہ شاہ صاحب بحیرہ شیف والے، اسی طرح پیر نقیب الرحمن عیدگاہ شیف والے، پھر گولڈا شیف والوں سے، چورا شیف والے پیر سعادت علی شاہ صاحب سے اور دیگر مشائخ سے ہماری یہ بات چیت ہوئی، کل انشاءاللہ وہ فائنل ہو رہی ہے۔ تو ہمارے علماء کا اور مشائخ کا سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی معیشت جس قدر گر چکی ہے، اس کا بہتر حل یہی ہے کہ ہم پاکستان میں الیکشن کرائیں اور موجودہ جو سیٹ اپ ہو اس وطن عزیز کی معیشت کو بچائے، اور اس وطن کے لیے جس طرح کہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے بہت بڑی قربانی دے کر اس کو بچایا تھا اور بسایا تھا اور اس کو پائے تکمیل پہ پہنچایا ہے، اسی طرح پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر مان کی شیف والے اور بہت سارے بزرگ ہمارے، حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور بسانے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے بھرپور جد و جہد کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء پاکستان اس کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور الیکشن کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے وہ اس ملک کا وزیر پھر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جمعیت علماء پاکستان اس وقت 8 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جی دھڑے تر دھڑے ہیں، جی جی اور کیا ان 8 دھڑوں کے پاس کوئی ووٹ بھی ہیں؟ یہ الیکشن بھی جیت سکتے ہیں ان میں سے ہاں، کوئی بندہ؟ اس میں سے جہاں تک ناز صاحب آپ کا تعلق ہے 8 دھڑوں کا، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں کہ جس کے دھڑے نہیں ہوئے، ٹھیک، سوائے ایک واحد جماعت اسلامی ہے، ٹھیک ہے، ذکر اللہ صاحب موجود ہاں، ہیں۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، میں ایک جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ واحد وہ جماعت ہے کہ جس کے اندر سیاست بھی ہے، جمہوریت بھی ہے اور مذہب بھی ہے، تو اور آپ اس میں شامل ہو جائیں پھر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ذکر کو اللہ صاحب یہ ذکر ہمارے اللہ مجاہد سرپرست ہیں صاحب جی، ہیں، بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، اور بہت اچھا، سارے پاکستان کے جو مشائخ ہیں، ہمارے خواجہ معین قریجہ صاحب اور بہت سارے پاکستان کے مشائخ، ہم جماعت اسلامی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا جو چیزوں جو ہے لوگوں کے دلوں میں ایک بات تھی نا کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر سال پیر صاحب مجھے آپ اسپیسیفک جواب دیں، آپ جی، کے 8 دھڑوں میں کون سا بندہ ایسا ہے جو قومی اسمبلی کا اس وائس اس وقت تو موجودہ صورتحال میں اب انشاءاللہ تعالی تقریباً ہمارے 10 لوگ ایسے ہیں ہاں، کہ جو الیکشن کے لیے تیار کھڑے ہیں اور جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ لاہور سے بھی ہے؟ جی، کچھ لاہور سے بھی ہیں، پیر سید معصوم حسین نقوی صاحب، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ۔ ایک اور ساتھی ہیں، اور تقریباً ہمارے 10 ساتھی ایسے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان سے الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان کے خاص کر کے 2 ہی دھڑے ہیں، جمعیت علماء پاکستان نورانی اور نیازی، کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، اور تیسرا جو دھڑا ہے نورانی صاحب کے صاحبزادے کا، اویس نورانی صاحب کا، کیونکہ پیر اعجاز ہاشمی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے بیماری کی علامت کی وجہ سے، ان کا وہ جو سسٹم اور سلسلہ تھا وہ سارا جو ہے نورانی صاحب کے صاحبزادے کے پاس ہے۔ اسی طرح جو بھکی شیف سے صاحبزادے ہیں وہ بھی جمعیت علماء پاکستان، انہوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے اچھا کہ چلو، یہ انشاءاللہ ساری تعالی- بات اچھی ہے، میں یہ گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے 10 کینڈیڈیٹ حصہ لیتے ہیں جی اور اس میں کچھ جیتتے ہیں کچھ ہار جاتے ہیں، جی جی تو کیا کردار ادا آپ کریں؟ آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ ان- آپ کو یاد ہونا چاہیے جی۔ کہ جب مولانا شاہ نورانی تھے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کے قائد حزب اختلاف تھے، اور سندھ میں ظہور حسن وپاری تھے، وہ قائد حزب اختلاف تھے، بہت بڑی، یعنی پیپلز پارٹی کے بعد آواز 1970 میں یہ سب سے بڑی پارٹی تھی، جی کچھ تو یہ آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس پارٹی کا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دھڑوں کو ختم کر کے ایک جماعت، ایک پلیٹ فارم پہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل 100% امید ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع ذکر اللہ میں ایسا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جماعت اسلامی ہر ویلے شور و غل، کیا نام ہے، ہر پہلے سڑکوں پہ، کبھی کراچی میں کبھی پورے پاکستان میں، کبھی ٹرین مارچ، کبھی لانگ مارچ،
होता आपसे कुछ भी नहीं है, लेकिन शोर आप इतना मचाते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लोग आपके साथ हैं। अब कराची में भी आप हार गए और इस तरह हारे कि पीपल्स पार्टी ने आपको दीवार के साथ लगा दिया। इस वक्त भी, अभी इस वक्त जो हम बैठे हैं यहाँ पर, आपका एहतिजाज पूरे पाकिस्तान में जारी है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? जी बहुत शुक्रिया जी नाज़ साहब, एक तो आपने हमें दावत दी है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशल टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं। देखें, इस मुल्क के अंदर हालात तो आपके सामने हैं, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, हालात को समझने वाले, बल्कि उसका तजिया करने वाले हैं। आप देखें, हम तो ढलवान के सफ़र पे हैं और जो पार्टी भी आई है उसने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, उसके इदारों को तोड़ ख़राब करने में और मुल्क की मईशत को तबाह करने में ही अपना किरदार अदा किया है। और ये ऐसी सच्चाई है कि जिसको कुछ झुठला नहीं सकता, रिकॉर्ड सारा मौजूद है। जमात इस्लामी ने हमेशा इस मुल्क के मफाद के लिए आवाज़ को बुलंद किया है और हमने जमहूरी रास्ता इख्तियार किया है, जद्दोजहद की है। और जब जब कभी हमें एक छोटे पैमाने पे अगर कभी इक़्तिदार का मौका मिला है तो जमात इस्लामी ने यह भी साबित किया है कि इस मुल्क की जमात इस्लामी वो पार्टी है कि जो न सिर्फ अमानत और दयानत के साथ काम करना जानती है, बल्कि सलाहियत भी उसके पास है। आप देखें, सिराजुल हक 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहे और उनकी कारकर्दगी ऐसी रही कि जो मॉनेटरी इदारे हैं उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान में सबसे कोई बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो सिराजुल हक है। उन्होंने 5 बजट दिए जिसमें ये तो मुजाहिद साहब से सारा क्रेडिट आपको जाता है जी। मैं करंट पे आए, आप पिछली बातें छोड़ें। अब बात ये सूरत है जो मैंने बात की है ना, ये हर वक्त जलसा, जुलूस, धरना, और इस वक्त भी आप कराची में धरना दिए बैठे हैं, तो ये इससे मुल्क की मईशत को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, या इसके आपको पार्टी को कोई फ़ायदा हो रहा है? देखिए नाज़ साहब, हमने तो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की है ना। कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया है और आप देखें कि 193 लोगों ने आके हाफिज नईम साहब के साथ खड़े होकर हल पड़ा और 173 जो थे वो पीपल्स पार्टी के साथ थे। ये रिकॉर्ड की बात है। अब आप देखें कि और वोटों का भी आप देखें तो एक तरफ 3 लाख वोट हैं पीपल्स पार्टी के और दूसरी तरफ 9 लाख वोट हैं। अब 193 सीटें और 9 लाख वोट, आप अपनी धौंस और अपने इक़्तिदार की बुनियाद पे, बदमाशी की बुनियाद पे, इदारों को अपने साथ मिला के अगर आप 9 लाख वोट जो लेने वाली पार्टी है उसको दीवार से लगाएं और आप 193 जिनके पास वोट हैं उनको दीवार से लगा के 173 वाले को कराची का मेयर बनाएं, तो आप बताएं कि हम क्या करें फिर? क्या उस पर एहतजाज न करें, अपनी आवाज़ बुलंद न करें? मेरी बात, आपने पहले भी तरीके इंसाफ से इत्तेहाद किया, खैबर पख्तूनख्वा में रिजल्ट क्या निकला? अब भी इत्तेहाद किया आपने कराची की सतह तक, तो रिजल्ट क्या निकला? असल में आपको मरवाया तरीके इंसाफ ने कि उसके अगर 33-34 लोग आपके वही डाल के आप बढ़ते थे ना, जब वो ही नहीं आए, जब उन्होंने आपका साथ ही नहीं दिया, तो आप कैसे जीत सकते? ये क्या दावा आपका? अच्छा, वैसे जो आपने 9 लाख की बात की है ना, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन में वही जीतता है जिसके वोट ज्यादा होते हैं। वो एक को चाहे 75,000 पड़े हों, ये एक को उससे 1 वोट ज्यादा पड़ता है, वही जीतता है। तो बाकी तकसीम हो जाते हैं ना वोट, आपको वोट जरूर मिले लेकिन तकसीम हो गए, जिसकी बुनियाद पर आपको ये जिक्र उठानी पड़ी। अच्छा नाज़ साहब, आप मुझे बताएं, यानी मैं वैसे सवाल आपसे करता हूं कि धांधली का आगाज तो पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदी से किया है कि एक हल्का वहां पे आप 15 और 20,000 वोटों वाला बनाएं और एक आप बना दें 80,000 वोटों वाला। जो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं वो छोटे छोटे आप ज्यादा बना दें, और जो हमारे हल्के हैं जहां उन्हें खदशा था कि जमात इस्लामी जीत जाएगी उसको आप बड़ा बना। ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूं। हम इसमें दो राय नहीं रखते, उसमें वो खाइन है, उन्होंने जुल्म किया है, उन्होंने पाकिस्तान के इस सारी सियासत को खराब किया है। आई नो वेरी वेल, आई एम आस्किंग हियर, बट मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरा आपसे क्वेश्चन है ना, आपने तरीके इंसाफ से दूसरी दफा धोखा खाया है। अच्छा नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ उस वक्त तो वो इक़्तिदार में थी खैबर में, और हमारे पास उस वक्त 8 वोट थे। अब हमारे पास 2 रास्ते थे। एक ये है कि जो मुस्लिम लीग नून थी और मौलाना फजल रहमान साहब थे, जिनका मैंडेट पीटीआई से कम था, पीटीआई से, केपी के लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया
انہیں چند سیٹوں میں کی ضرورت تھی. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. نہیں میری کے پی کی بات سن لینا, بات واضح تو ہو نا پھر. تو ان کو چند سیٹوں کی ضرورت تھی گورنمنٹ بنانے کے لیے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ جن کو خیبر کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ہم ان کا ساتھ دیں, ان کا ساتھ دیں. ہم نے بالکل میرٹ پہ کیا ہے, جن کا مینڈیٹ تھا ہم نے ان کا ساتھ دیا. اب ادھر آپ دیکھیں کہ مینڈیٹ ہمیں ملا, لیکن ہمیں بھی نمبر پورے کرنے کے لیے بہرحال کسی نہ کسی سیاسی دھڑے کی ضرورت تو تھی. اب پی ٹی آئی نے بذات خود غیر مشروع طور پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دینا, ہم جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے. اس لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے کہ کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ ان کو دیا ہے, انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا. اب میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سر, جب آپ بے ایمانی پہ اتر آئیں, جب آپ جو نا وہ دھونس اور دھاندلی پہ اتر آئیں, تو رزلٹ تو پھر یہی ہوگا. رزلٹ تو پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ جن کو مینڈیٹ ملا ہے, اگر دھونس کے ساتھ آپ کہیں کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تو پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو اقتدار کی پارٹی ہے, سارا کراچی میں آپ نے ظلم کیا ہے, اب آپ کہتے ہیں پاکستان پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں اور بلاول کو ہم لائیں گے. ہاؤ پاسبل؟ میں سب سے پہلے آپ کو اقتدار کی پارٹی نا, آپ جواب لینے سے آ جائیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا, آپ کے چینل کا, آپ کی ٹیم کا. یہ ذاکر اللہ صاحب بہت اچھی باتیں کی, پیر صاحب نے تو بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے اب آپ بھی اچھی باتیں کریں گے. نہیں, ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 9 لاکھ کہتے ہیں جی ہمیں وہاں وہ کراچی میں وہ ملے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کس حساب سے 9 لاکھ کہہ رہے ہیں؟ کہ پی ٹی آئی کے بھی ڈال رہے ہیں ساتھ؟ ڈال گئے ہیں نا. تو وہ میری بات سنو, ایک سے بات ہوتی ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں, ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے, کچھ دینے, کچھ سرے سے گھر سے ہی نہیں آتے دینے کے لیے, اور کچھ جو دیتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں. تو یہ کس حساب سے کہہ رہے ہیں 9 لاکھ کا ہمیں ملا ہے, 9 لاکھ ملا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ غلط بیان کر رہے ہیں. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ماشاء اللہ کی پیداوار ہے. یہ جماعت اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. انہوں نے جنرل ضیاء, جنرل یحییٰ اور جنرل مشرف کے زمانے میں 3 دفعہ ان کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ دھاندلی کرتے ہیں نا, ان سے پوچھیں کہ اس قابل تھے کہ یہ کراچی کے میر بنتے. 3 دفعہ یہ ماشاء اللہ ہی میر رہے ہیں ان کو وہی چانس لینا چاہتے تھے کہ ہمیں یہ کریں, یہ کریں. ہمیں آپ اتنا برا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے دھاندلی کی جماعت ہے. تو یہ میاں عزیز الرحمان چاند صاحب کے ساتھ یہ اس کے دور میں کیا نام ہے, راجستھان مجھے یاد نہیں ہے, یہ میاں نواز شریف کے وقت انہوں نے ہمیں کیوں میر دیا, حالانکہ بالکل جانتے رفت ڈالتے ہیں جی ہم کو, اس لیے ہم آپ کا ساتھ تعاون کریں گے کہ ہمیں میر شپ دو. اچھا, وافد سلمان صاحب, ٹھیک ہے, وہ یہ تو ہر سیاسی پارٹی کا حق بنتا ہے. میری بات سنیں نا, پہلے اپنے کیپیسٹی دیکھیں نا. اچھا دیا کیا نکلا, ہم بعد میں رفت ڈال دیتے اس وقت بھی. اور یہ ہم پیپل پارٹی کے ووٹ جو جمع کر کے بھی, یا جماعت اسلامی کی جو ہمارے اتنے تھے, انہوں نے یہ کیا وہ بھی, ٹھیک ہے ہم کم تعداد میں تھے, ٹھیک ہے. یہ بیوقوفوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں 155 ووٹ ملے ہیں کراچی میں, ان کو کتنے ملے ہیں, ٹھیک ہے. باقی انہوں نے لینے تھے نا باہر سے, انہوں نے اعتبار نہیں کیا, اعتماد نہیں کیا. تو اس میں جو ہمارا کیا جرم ہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہ اتنی پارٹی میری بات ہے, آپ نے کافی ارکان کو اٹھا کے غائب کر دیا. کوئی ثبوت ہے تو لے جائیں نا, عدالتیں کھلی ہیں, ہمیں روکا ہے. یہ ڈرامے بازی کرنا بند کریں نا, یہ عدالتوں میں جائیں, وہاں جا کے کہیں جی وہ آدمی بیان دیں, وہ ان کے ممبر بیان دے جی ہمیں اٹھایا ہے, انہوں نے غائب کیا ہے, انہوں نے اغوا کیا ہے, ہمیں زیادتی کی ہے, وہ لے جائیں نا انہیں. یہ بلاول آپ ایسے ہی بس ہوا میں باتیں دروازے چلاتے رہتے ہیں. کیسے خواب آتے ہیں اس کو میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. کیوں, کس نے کہا ہے میں وزیر اعظم؟
नहीं हालात वाकयात ऐसे चल रहे हैं, अच्छा पार्टी उभर रही है। हमारा कराची में जितना काम किया है या सिंध में किया है किसी और को हुकूमत ने किया है, जिसे बाहर की इंटरनेशनल तौर पर भी तस्लीम किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है कि आपके साथ है? ये तो वक्त बताएगा। मैं वक्त क्या बताएगा? क्या हमको अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपने को उनके हालात अपने साथ है, जमात इस्लामी के अपने साथ है, उनके वो जिम्मेदार हैं। हम तो हर आज पार्टी के बात हो रही है, हम छोटी सी लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये मैंडेट कैसे चोरी किया है। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह का पसंदीदा अमल भी। अल खिदमत ऑनलाइन कुर्बानी से फायदा उठाएं। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क घर बैठे कुर्बानी अतिया करें। अल खिदमत फाउंडेशन ईद उल अज़हा के मौके पर लाखों मुसीबत ज़दा और मुस्तहिक खानदानों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाती है। इसके अलावा इस साल फलस्तीन, रोहिंग्या और शामी मुहाजिरीन के लिए भी कुर्बानी का एहतमाम कर रही है। आइए इस ईद उल अज़हा कुर्बानी मुस्तहिकीन के नाम करें। वेलकम बैक जनाब मिर्जा दरीस साहब, आप ये बताएंगे ये जो मैंडेट आपने चोरी नहीं किया कराची का, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे वोट ज्यादा थे, हमारे मेरी वो किस बात तरह? मेरी बात सुने। हाँ। कैसे ये इल्जाम लगाए ना, साबित करें ना कि चोरी की है। वो तो कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि चोरी की है, तो वो सबूत दें ना। आजादे हैं वो, कोई कहीं फोरम पे आए बात करें कि जी ऐसे वो फलां आदमी को उठा लिया, फलां आदमी को ये किया वो किया, ये बताएं तो सही ना। कैसे हवा में बातें करते रहे जी वो उन्होंने चोरी कर दी। आप सबूत बताएं वो कह रहे हैं सबूत बताएं। अच्छा ये कहते हैं ना अदालत में जाए, वो तो हम सही जीते हैं। वो तो मैं इनकी इत्तला के लिए बताऊं कि हम तो हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने अपनी रिट पिटीशन दायर की हुई है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे भाई को पता होना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन भी हुआ है उस नोटिफिकेशन के ऊपर ये मेंशन है कि जो हाफिज नईम साहब ने रिट पिटीशन की है, अगर अदालत उसके हक में फैसला देती है तो ये इलेक्शन जो है ये खत्म हो जाएगा। ये बकायदा नोटिफिकेशन के ऊपर उसका भी इंतजार करना चाहिए ना इनको। क्यों ना मेरी बात है, जो रिमार्क्स लिखे हैं उसका इंतजार करो। ये ड्रामाबाजी बंद करो। ड्रामाबाजी नहीं, कोई ये ड्रामाबाजी और क्या है? मुझे ये बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ये ड्रामाबाजी का मसला तो नहीं है। जब लोग वहां पे हल पढ़ने के लिए आए तो पूरी दुनिया ने देखा है कि 193 लोग हमारे साथ खड़े थे, उन्होंने हमारे साथ हल पढ़ा है। और जब मेयर की वोटिंग के लिए आए तो बंदे 30 गायब कर दिए धौंस की बुनियाद भाई। ये मसला ये है कि वहां वोट पूरे आप नहीं ना कर सकते। मैं कहता हूँ जब वोट पूरे नहीं है तो आपका बंदा कैसे मेयर बन सकता है? मैं कहता हूँ ना, चलो वो तो ठीक हो गया ना, ये बात हम कहते हैं कि ये बदमाशी और इक्तदार की वजह से इन्होंने उन लोगों को नहीं आने दिया। साहब मेरी बात, एक मिनट मेरी बात करें, मैं तो इनकी बात में नहीं बोल रहा। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी है, कितने लोग थे उसमें? सर मेरी बात, दूसरे दिन उन्होंने बयान दिया हमको खाना खाने गए थे। बात कंप्लीट, आप अपनी भीड़ में खड़े, आप अपनी बारी में बोले प्लीज। भीड़ में खड़े हो सारे मेरे आप बात करें। आप ये तो मेरे से सीनियर आदमी है, आप बात करें, पुराने सियासत आप अपनी बात करें। मैं कहता हूँ ये बोले ना, मैं तो उनकी बात में नहीं बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी हुस्न होता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोई नहीं, मैं कहता हूँ कि इन्होंने धांधली तो शुरू की है हल्का बंदी से, हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम जीत गए वहां पे, इन्होंने भी सीटें ली, हमने भी ली, हमने उस पर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उसके बाद जब 193 वोट हमारे हलफ पड़ते हैं आके और वो कहते हैं कि हम हाफिज नईम रहमान के साथ हैं, हम इसको मेयर के लिए वोट देंगे, और फिर मेयर की वोटिंग का दिन आ जाता है। अब वहां 193 मौजूद हैं हलफ में, और फिर आप 30 बंदे गायब कर दें अपने ताकत और बदमाशी की बुनियाद पे, तो मुझे बताएं और मैंडेट पे डाका क्या होता है? नंबर 1। नंबर 2, फिर सुने, ये जो मुर्तजा वहाब साहब हैं जिनको ये मेयर बना रहे हैं, उनकी हालत तो ये है कि वो इलेक्शन नहीं लड़े। एक अनइलेक्टेड बंदा
कानून में तरमीम करके आप उसको कराची के सर पे बैठाना चाहते हैं। नहीं, और 1.5 साल, वो हो जाना चाहिए। मैं within 6 कहता हूँ months 1.5 हो साल जाता पहले, 1.5 साल पहले कानून है, कानून है, आइन की बात है, ऐसी कोई बात 1.5 साल नहीं। वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, है ना, हाँ। तो कौन सी दूध और शहद की नारे बाई हैं। वो- ये 19 साल से पीपल्स उनकी पार्टी इक़्तिदार में कारकर्दगी है, वोट मिला है कि इतने वोट मिल 19 गए साल से ये पाकिस्तान सिंध की- के इक़्तिदार में उनकी है। आला कारकर्दगी- इन्होंने कराची को तबाह नहीं, कर दिया, आपके उनकी- तीन पीने दफा का मेयर पानी हैं, नहीं आपने है, क्या वहाँ किया? के आपने इलेक्टेड क्या किया हाँ, कराची में? आपने 3 कुछ दफा नहीं किया। मेयर रहे हैं, मैं 15 कहता हूँ साल हम मेयर मेर रहे रहे हैं। हैं। चलो इसी पे कट लगाएं। हाँ, जो नेमतुल्लाह खान और अब्दुलस्तार अफगानी का काम है, ये उसको ले आए, आप उसको एक उसकी रिपोर्ट बनाएं, टीवी के ऊपर पेश करें। अगर जमात इस्लामी ने, नेमतुल्लाह खान ने कराची को तरक्की नहीं दी तो हमें इधर बैठा के आप जूते मारें। ये तो 19 साल से इक़्तिदार में है ना, और इन्होंने कराची को खंडर बना दिया है। लेकिन जब हमें मौका मिले, आज भी लोग नेमतुल्लाह खान की अच्छा बात पीर करते अख्तर हैं। सूद साहब, आप ये बताएं, क्योंकि आप जमीयत पाकिस्तान कभी कराची और हैदराबाद में उनका तुद ही बोलता था, ये आपको क्या होगा? आपका बिल्कुल चिराग वहाँ गुल हो गया। असल अब बात आज ये- जमात इस्लामी और पीपल पार्टी लड़ रही है। असल बात यह है कि अब भी वहाँ हमारे अकाबिर और हमारे रहनुमा डॉक्टर नजर तो कहीं नहीं आया, कोई नहीं बने। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब हैं इंशाअल्लाह ताला, और आइंदा इलेक्शन में हम वो भरपूर चिराग हिस्सा लेके लेंगे। भी ढूंढे तो नहीं मिलते, क्या हो गया? उन्होंने ये? साथ दिया, हमारा सरपरस्ती इंशाअल्लाह की है ताला हमारी। आप देखेंगे, ये तो जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी जमात है, शहीदों की जमात है, वफाओं की जमात है। पाकिस्तान पंजाब से आप देख ले, बहुत सारे सूबों से बिल्कुल साफ होगी, और कराची में है। तो ये तो वो तो वक्त सूबों जिद- से आप हाँ, तो सारी दुनिया पाकिस्तान से साफ हो ये गए। तो दुनिया में निज़ाम चलते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस मर्तबा हमारे बहुत सारे मशाइख जो है तैयार हो चुके हैं इलेक्शन के लिए, और भरपूर तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला ये जो कल इतिहाद हमारा बनने जा रहा है, इसी इतिहाद के प्लेटफार्म से हमने इंशाअल्लाह इलेक्शन करना है। अच्छा अल्लाह नहीं, की मुझे दुआ। ये बताएं कि जी। आप जमीयत पाकिस्तान, जी जी क्योंकि मैं ये दड़ों की बात नहीं करता, ओवरऑल जो बात है, जब कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह थे और सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी टोबा टेक सिंह में, जी जी उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको और हुई दिया, जी बिल्कुल। और अब पाकिस्तान की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन जी, कोई गई, शक नहीं। और पीपल पार्टी का आपने मुकाबला किया। जी अच्छा, इस वक्त क्या आप ये कल की जो बात बार बार आप सुना रहे हैं, क्या जी। जादूगरी कल होगी कि आप फिर उभर आएंगे? इंशाअल्लाह ताला हम उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। ना तो हम में से कोई कमरुद्दीन सियालवी बन सकता है, ना ही कोई नूरानी साहब बन सकता है, ना ही कोई न्याजी साहब बन सकता है। वो अकाबर थे, वो दुनिया से चले गए, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम नूरानी पूरी साहब का कोशिश बेटा तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ ऐसे दो जानू होकर खड़ा होता है। जी। ये क्या मैटर है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं असल आती। बात ये अभी है कि वो भी वो- मशीर वजीर आज़म बन गया इसी वजह से, वो खड़ा है जानू दो होके। शायद वो आपने आपको- क्या निकाला उनका? आपको शुरू से पता है कि वो पीडीएम के साथ ही चल रहा था, शुरू से ही, आज से नहीं। जिस दिन से वो सियासत में उसने कदम रखा है, फजलुर रहमान के साथ ही वो चलता रहा, और अब भी वो उन्हीं के साथ है। जाहिर है को उसको कोई फायदा है तो वो चल रहा है। क्या हमें- फायदा है? आप भी देखे ना, क्योंकि आप आप भी- जमीयत पाकिस्तान का नाम है, आपका टैग है बात- जमीयत बात ये है पाकिस्तान कि का। वो बेहतर समझते हैं कि उन्हें क्या फायदा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भी इसी प्लेटफार्म पर लाएं, और हम ये चाहते हैं कि वो नूरानी साहब के जानशीन हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो उनकी अदाओं को ज़िंदा करते हुए इस जमीयत उलमा पाकिस्तान के प्लेटफार्म को, या जो ये बनने जा रहा है उसके प्लेटफार्म को, हम इसको इंशाअल्लाह ज़िंदा करेंगे। ऐसे मिर्जा दरीस बेग साहब, आप हुक्मरान पार्टी के यहाँ नुमाइंदे, हुक्मरान और बाबा हुक्मरान, और आपका जहाज नीचे नहीं उतरता। पाकिस्तान की सारी दौलत चली गई जहाज में, और बिलावल साहब जो है वो नीचे नहीं उतरते। तो मुझे ये बताएं, आपने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है, क्या किए? पाकिस्तान में आपने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, जी, जी। ये ऐसा धोखा दिया, वो अब भी जारी है। तो क्या कितना आप धोखा धोखा देंगे और आवाम को? क्या धोखा दिया? ये रोटी कपड़ा और मकान दिया आपने किसी को? तो उस वक्त क्या रोटी था? कपड़ा और मकान मांग रहा है इंसान, किधर गया वो? बिल्कुल, ये हमने आगाही दी है ना आवाम को। आगाही कौन क्या दिया है? 50 साल से आगाही दे रहे हैं आप, क्या? अभी तक किसी ने और कुछ मेरी नहीं दिया। बात सुने, 50 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी कहाँ रही है? कहाँ रही है? भट्टो साहब के साथ जिसने 15 साल नारा लगाया, 19 साल से तो मेरी बात कराची और सुने, सिंध में है। कितनी दफा ये इक़्तिदार में नारा आई है? लगाया भट्टो साहब ने। कितनी दफा आपको इक़्तिदार देंगे, आप निशा- रोटी और कपड़ों मकान देंगे? भट्टो साहब बताया ना ने, मेरे ठीक है, साहब। हमारा मंशूर का हाँ। हिस्सा है वो। तो मंशूर का हिस्सा है, किसी को हमें इम्प्लीमेंट भी continue करे काम ना। करने दें, देखें इंशाल्लाह कैसे ताला। अभी काम नहीं हुआ?
आपको मौका नहीं मिला? क्या नहीं मौका मिला? आप कहते हैं काम करने दें। सिंध में देखे ना, कंटिन्यू 3 टर्म्स मिली हैं, तो वहाँ वहाँ लोग देखा क्या? भूख से मर रहे हैं, वहाँ खुदकशियां कर रहे कभी हैं, लोग घर जाते में लोग थे, मर रहे हैं। कभी लोग सिंध में जाते थे तो ये ट्रेन की खिड़की बंद करते थे कि इतनी गर्दों को बाहर आती थी। अब सिंध में 95% जो है ना वो दरखेज हो चुका है। गर्दोगवार से खत्म किया आपने। नहीं, गर्दों को क्या बाहर बात नहीं, खेत लोग भूख से मर रहे हैं, आप गर्दोगवार वहाँ की बात करते हैं। हरियाली का क्या मकसद है कि इजनास पैदा होती हैं, हो रही हैं, हो आप कौम ज़रूरी की तौर पे तर्जुमानी सबसे करें, आगे कौम की तर्जुमानी करें जिनके वजह से आपने इक़्तिदार में यहाँ आना तो है। हमें मौका ही नहीं मिला पंजाब में, यहाँ इधर बहुत कम मिला तो है। किस प्रयास से नहीं मिला? क्या? आपने शरीफों के साथ हाथ मिला लिया, की आप उनके शरीफों होके रह गए, क्या तो इसलिए शरीफों आप के साथ? फारग हो गए। क्या शरीफों के साथ? अब और जब भाई ये ये जफ्फियां शरीफों डाली, वगैरह अब का जफ्फियां- मसला नहीं है, हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। हमारे तमाम मशहूर एस्टेब्लिशमेंट के उसको मंजूर नहीं है, और वो उनके साथ वो हमारी नहीं, इस दुश्मनी। वक्त ये आप- बेचारे क्या हैं? अब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं ये सारे। अब आप कहाँ हैं? क्या अब कहाँ हैं? क्या कहाँ है? आप कहते हैं ना हम एस्टेब्लिशमेंट की के गोद खिलाफ में हैं। हैं, बता हाँ, तो आप रहे कहें हैं। तो इस वक्त कहाँ है? अब ये Establishment सारा के- इमरान को जो मार रहे हैं आप, जी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही क्या है, मार रहे हैं मेरी ना, और क्या बात कर रहे हैं? सुने कि ये कौमी असासों पे हमला करें, ये दफाई असासों कौन? पे हमला करें, तो इनको ये हमारी जो लाइन, जो रेड लाइन है, वो तो अभी आपने पाकिस्तान- ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब से बात की, आप सबूत दें। जी। आप इसके सबूत देंगे किस तरह उन्होंने हमला किया, आपके सामने क्या नहीं कैसे? हुआ? क्या नहीं हुआ? कैसे? क्या इन्होंने किया जी उसकी गिरफ्तारी पर? क्या इन्होंने मुझे आप ये बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो जब गिरफ्तार आपका हुए, मतलब है कि आप लोग बाहर नहीं निकले थे? पाकिस्तान पर कोई नहीं हमला निकले थे करता है, बाहर? आपके पाकिस्तान पे भी या आपके घर पर कोई हमला करता है, तो आप छोड़ देंगे उसे? मैं कहता हूँ कोई नहीं छोड़ता। हम नहीं तो, छोड़ना हम- चाहिए। हम तो मेरी बात सुने, हम तो ये आज भी कह रहे हैं, मैं भी कई तो आज़ार कर चुका हूँ कि हम ये पीटीआई देखिए, अब ये है कि हम उसको तो कंडेम करते हैं, लेकिन उस एहतजाज और इन चीज़ों की आड़ में जो फिस्तायत कायम की है पाकिस्तान की पुलिस ने और इदारों ने, ये तो बदतरीन है ना। कि आप खवातीन को उठा के ले जाएं, आप बच्चों को उठा के ले जाएं, आप 8-10 हज़ार बंदा जो उसको जेलों में बंद कर दें, और आप लोगों पे मुकदमे कायम करें, और फिर अगर जो लीडर हैं या MP MNA जिसके ऊपर आपने मुकदमा कायम किया है कि ये वहां पे लीड कर रहा था, जब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि जी मेरा PTI से कोई तलक नहीं है, तो वो नीट एंड क्लीन है। यानी आप वो वर्कर बेचारे जो वहां पे मुमकिन है उनमें बहुत सारे थे भी नहीं। ये चौधरी प्रोविजन किसकी सजा दी जा रही है? मैं देखें, ये तो करतूतों की सजा है। अच्छा, ये तो जो अमाल सियासतदान करेंगे उनकी सजा उन्हें मिलनी है। अगर पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क से सुकड़ती अब सिंध में भी सुकड़ गई है, और चंद जिलों में, और कराची के अंदर भी जो उनका हाल हुआ है, अब वो अपनी धौंस और बदमाशी की बुनियाद पे और मैंडेट को चोरी करके वो बंदा के जो एक चेयरमैन यूसी का इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसको कराची के सर पे बैठा दिया है, और 1.5 साल से वो वहां एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने क्या किया है, ये सारी चीजें तो कौम के सामने है ना। वो फौजिया वहाब का बेटा है। अब चलें, वो तो दुनिया से चली गई, हम उस बिलावल पे और जरदारी साहब की आंखों का तारा है। मैं जाहिर है मैं वो बातें नहीं करना चाहता। देखें, अच्छा, आप और भाई प्रोविजन मेरी के बारे में आप बताएं, प्रोविजन के साथ ये क्यों ज्यादती की है, जब परवेज लाई साहब ने भी अब तो जुर्म किया? उसकी कई दास्तानें आ रही हैं ना, कि उन्होंने वो दर जिसके लिए वो कहते थे 1000 साल तक भी हम उनके साथ खड़े होंगे, उस दर को अब जब उन्होंने छोड़ा है, अपने बेटे के दबाव पे छोड़ा है, ये जैसे वो सारी बातें अंदर की तो आपको हमसे ज्यादा पता है, तो उसके बाद तो जाहिर है फिर जब बंदा भेड़ों के छत्ते में हाथ डाले तो कुछ भेड़ तो फिर उसको काटते हैं ना तो जी। पीर साहब को तो आप परवेज लाई साहब को साहब- परेशानी किस चीज की है? भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला है तो आप भेड़ें तो काटेंगे। पीर साहब
आप बताएं ये क्या माजरा है चौधरी फिरोज अली का, असल उसको तो पकड़ा है, दवाइयाँ नहीं नासाब दे रही, देखें, कपड़े नहीं बदले जा रहे, 4 फुट की कोठड़ी में रखा हुआ है। असल बात ये है कि उन्होंने इमरान खान के जो क्योंकि आपकी बयानिया उनके है, साथ बड़ी कुर्बत है। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इमरान खान का जो बयानिया है उस बयानिया पे उन्होंने मुकम्मल अमल करने की कोशिश की है और वो ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जिस बयानिए को आप समझते हैं कि हमारा मौजूदा सेटअप जो है उनको किसी सूरत में भी वो बयानिया पसंद नहीं है। और बाकी तो ये जितने भी उनके ऊपर एंटी करप्शन के हवाले से और भी जितने भी केसेस हैं, आप समझते हैं ये तो सियासतदानों के ऊपर बनते रहते ही हैं, लेकिन उसको चाहिए था कि जब से वो उस बयानिए के हक में था, उसके बड़े लोग भी, और आप समझते हैं कि ये वाहिद जमात थी कि जो हर दौर में 2, 4, 5 सीटें लेती रही। किन की वजह से लेती रही आपको ये भी पता है। और जब आप एहसान फरामोश होंगे तो फिर जाहिर है अच्छा, फिर एहसान फरामोशी की सजा है। हाँ जी, फिर तो आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी है बस। तो ये अदरीस साहब- इन पर लिखी किताब पढ़े चौधरियों की चोरियां, आपको सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि ये चोरियां जरदारी ने नहीं की, नवाज शरीफ ने की, आप बताएं ना, ये सब लोग इमाम में नंगे हैं, सब एक जैसे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का ये चलाया भी रील है ये जरदारी साहब के साथ कि अगर उन्होंने चोरियां या कोई ऐसा काम किया है तो अदालतें खुली हैं, उन्हें सजा दिलाओ। आज तक तो साबित नहीं कर सके, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर। शोर आप इतना डालते हैं जी उसने ये की, ये एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था जो कोई होगा जरदार बेनज़ीर का खामद उसके खिलाफ इन्होंने यही करना था और कर रहे हैं। वही असर अभी तक लोगों के ज़हनों से नहीं निकल रहा, आप जैसे लोगों के ज़हनों से यानी नहीं निकल रहा। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होने के बावजूद आपको बेनजीर के बाद कितनी दफा इक़्तिदार मिला है? तो इन्होंने ही इक़्तिदार नहीं नहीं किया है। बताया ना मुझे अब। मेरी आप बात सुने। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इक़्तिदार में हॉट पॉसिबल। अवाम ताकतवर है, अवाम ने हमें ये अपना 8 में दिया था इक़्तिदार, इन्होंने नहीं दिया था। इनको तो हमने घर अब भेजा अवाम था। इमरान खान के साथ आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं। जब हम उनके साथ है तो हम क्या कह रहे हैं उन्हें, क्या कहा है हमने क्या उसकी उनको महंगाई की उनको बात, दीवार- अवाम की बात की नहीं तो क्या हम महंगाई का नारा लेके आप आए थे, बिलावल ने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाला था, तो किधर है वो महंगाई? भाई मेरी बात सुने, हम तो उसमें से खारजा और वो क्या नाम है 1-2 छोटी वजारतें हैं और खारजा है बड़ी वजारत हमारे पास। यहाँ स्पीकर का मसला है। भाई और ये स्वात में तकरीर करते हुए बिलावल ने कहा है कि आप हमें पूरा हिस्सा नहीं दे रहे, हम आपको छोड़ देंगे। कमाल। बात सारी पैसे की है, पैसे की लड़ाई। बिलावल ने खुद कहा है स्वात किस में, चीज का हिस्सा नहीं दे रहे? स्वात में खुद उसने कहा है क्या? कि आप बजट में हमें वो पैसे नहीं दे रहे जो बजट हम में चाहते क्या है हैं। ना, वो पैसे तो नहीं पैसे दे। और चोरी कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ऊपर से गिरते हैं। और यार आपकी समझ ही पता नहीं महदूद है। आप ये बजट को वही चोरी वाले पास ले जाते हैं या करते हैं। बजट होता है तो वहाँ वो उसका हिसाब नहीं होता। मिर्जा साहब ऑर्डर नहीं होता। आपने भी बजट इस्तेमाल किए हुए हैं, कहाँ आप दिए भी हुए? कायदे के खिलाफ रहे हैं, जी। अपोजिशन लीडर रहे हैं। जी, जी। आपको नहीं पता पाई बजट कैसे पाई का इस्तेमाल होता है, कैसे मेरी खर्च बात होता है सुनो, पाई और पाई कैसे इसमें कमीशन नहीं जाती ऑर्डर है। होता था, पाई का हिसाब लेते थे। जिनका पैसा था वो पैसे का हिसाब लेते थे। ऐसी नहीं है बात का, ये बातें बनी हुई हैं कि जी वो बजट ले गया तो वो घर ले गया। कोई बजट घर नहीं कोई ले जाने देता। बिलावल ने 2 अरब रुपया जो है ना 1 साल में ये हवाई जहाज में गवा दिया मेरी है। और लेके क्या आया वो? मगर उसका ये महीना 1.5 महीने पहले के बयान भी सुन लें क्या- या क्या पढ़ बयान? लें। क्या आपकी बयान? नजरों से भी क्या गुजरा हूं। बयान? उसने क्या कहा कि जब से मैं वजीर खारजा बना हूँ एक दमड़ी का पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट की जो और मैं बता रहा हूँ, आपको मेरी माल बात बात करते हैं सुने आप। कि ये ये मेरे सब झूठे बयान है, कुछ नहीं। मेरे उन्होंने साथ- जो कुछ किया है, मुझे आप ये बताया, अगर वो बरतानिया में जाते हैं तो वहां पे जो हाई कमीशन है वो सारा खर्चा करता है, तो वो मेरे और आपका टैक्स नहीं है। कमाल बात करते हैं। तो जो मेरी अब तो ये जो जाता है अपने पैसे से जाता है। और नहीं ये इनके जो आदमी है नहीं, आपके नहीं से क्या होगा? मुझे ये हमारे बताएं, पास सबूत है इस चीज मेरी के। बात सुने। वो कह रहा है, वो सर जो ये- कह रहे हो वो झूठ कह रहा है। जो वो दूसरे कह रहे हो वो आपको ये डॉक्यूमेंट है ना, एक क्या डॉक्यूमेंट document है। एक ये बजट में बात आई है कि इतने पैसे नहीं। इसने जहाज में उड़ा दिए हैं, तो किसने- आप कहते हैं ये पैसे क्या जेब से खर्च करते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं?
कोई आप दिखाए पढ़े ना, पढ़े आप, मैं क्योंकि पढ़ता आप हूँ, मैं सिर्फ ना, आपसे ज्यादा पढ़ता हूँ मैं। आप सिर्फ जो मीठा मीठा है वो हब है, और मैं- कड़वा कड़वा मेरी थू, बात ये सुनो, बात है आपकी, और मेरी बात बात कोई नहीं। सुनो, वो कह रहा है कि जी मैं जितने पैसे मैंने बाहर गया हूँ अपनी जेब से लगाए हैं, ठीक है, उस पे देख लें, उनका भी बयान देख लें, उनका भी देते हैं यार इसका अरे भी ऐसा आप ये प्रसार करें। आखिरी आखिरी 1 मिनट है, आप ये आप बताइए ऐसे कि ही ये जो बलावल शो डालते रहते हैं कि वो बलावल जिस उसने तरह नारे लगा लगा रहा दिया। है, क्या दूसरी वो बात, पाकिस्तान मेरी पर बात कब्जा सुने कर लेंगे? राज साहब, मेरी बात सुने, वो वजीर अब उन्हें बात करने, अब उन्हें बात वो करने दें, वजीर खारजा है, अब उन्हें बात उसके- करने दें, उसका- आपने अपनी बात मुकम्मल की, उन्हें बात करने दें। जी फरमाएं। इनकी तो जो सियासत है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी, ये तो है ही झूठ और मुनाफिक की सियासत। वो कहते थे पेट आप फाड़ेंगे, इनके तादीर हैं? नहीं मैं सुन आप रहा भी इनके तादीर मैं हैं? कहता हूँ हम तो हाँ। पीपल्स पार्टी के कभी तादी नहीं रहे। अच्छा, पहली बात ये नरम सुन लें। गोशा। देखें, इलेक्शन लड़ते हम हैं हर हमारे सियासी साथ। पार्टी के बारे में इलेक्शन- नरम गोशा रखते हाँ। हैं। हम इलेक्शन समझते लड़ते हैं कि हमारे साथ, पाकिस्तान, मेयरशिप हम के ये लिए समझते हैं कि इंतजार पाकिस्तान कर की लेते सियासत हैं। से यही और मैंने हमारा यही साथ मैंने बात मेरा यही साहब बात बात पूछी, सुने। यही मैंने बात हम- पूछी। हम इनको ये- मफाद चाहिए हम ये- होता है कि हमें सीट मिल जाए, मैं सुन जहाँ ले से जी, मर्जी सुन ले, मिल जाए। कोई बात नहीं, नाराज ना हो, आप बात सुने मेरी। हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को चाहते हैं कि ये पनपे। अच्छा, हम एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको खत्म करना चाहते हैं। हम इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है तो आप सर सुन लें कमाल बात बात सुन लें। करते हैं आप। हम तो एस्टेब्लिशमेंट के रोल के मुखालिफ हैं पाकिस्तान की सियासत में। यानी आप भी हम- मुखालिफ हैं, पीपल पार्टी हम मुखालिफ आजाद है। इलेक्शन कमीशन के हक में हैं। हम अदलिया को समझते हैं कि उसको बिल्कुल फेयर और फ्री होना चाहिए, उसको सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन पार्टियों को तो मौका मिला है ना, पीपल्स पार्टी को भी मिला, मुस्लिम लीग नून को भी मिला। जमात इस्लामी को तो नहीं मिलेगा। सुन ले क़यामत तक। बात सुन ले जब मिर्जा से साहब, कोई पाकिस्तान बात बना नहीं। है ना, 4-5 मैं ये सीटों पूछता से हूँ, आज तक नहीं मैं ये मिला पूछता हूँ कि सिवाय 75 साल, के यार सुने इत्तेहाद मिर्जा जब ये साहब, करते हैं तो मिर्जा साहब 5 सुन से लें, कोई बात 5 से नहीं। 7 हो सकती है। इंशाल्लाह हमें भी मौका 6 मिलेगा, आज नहीं अल्लाह हमें मिली मौका गई। देगा, आप इंशाल्लाह घबराएं ना, 75 साल हुए आप तो घबराएं ना, आवाम मौका आपको मिलेगा मिलती हमें, नहीं है। हम मौका लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उनको बात अच्छा, कंप्लीट प्लीज। मैं कहता हूँ कि पिछले 75 बात साल, कंप्लीट कर पिछले 75 साल में इन सारी पार्टियों को मौका मिला है ना। अच्छा, मैं ये अल्लाह मियां मैं देगा आगे। सुन लें, कोई मिर्जा बात साहब नहीं, सुन ले, नाराज ना हो, हौसला करें, नाराज हौसला ना हो, करें। सुने। आपने बड़ी बातें की हैं। इस वक्त जो अभी बजट आया है, उस बजट का 55% सूद और कर्जों की अदायगी में जाएगा। ये है इनकी कारकर्दगी इन पार्टियों की। आपके बजट का आधा हिस्सा जो वो है सारा कुछ इमरान पर डाल देते हैं सर, भाई। इमरान पे ना, मैं कहता हूँ तीनों की आप ये हिस्ट्री निकाल लेना, जरा मीडिया पे दिखा दें, इनकी भी दिखाएं कि इनके दौर में कितने कर्जे लिए गए, नून लीग के दौर में कितने कर्जे लिए गए, इमरान सबको दिखाएं ना। हम तो यही कह रहे हैं। हम समझते हैं कि ये लोग अपने मफाद की सियासत करते हैं, मुनाफिकत की सियासत करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सियासत से पैसा बनाया है, इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया है। इसलिए जब तक दयानतदार क़यादत नहीं आएगी, जब तक एस्टेब्लिशमेंट इस गंदे खेल से बाहर नहीं निकलेगी, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं पीर कर साहब, सकता। आखिरी चंद सेकंड है, आप पैगाम दें कौम को कि वो आपके साथ कैसे जुड़े। आप किया तो आपने कुछ भी नहीं। नहीं, इंशाअल्लाह ताला मेरा तो यही पैगाम है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी सियासी जमातें हैं, हम ये चाहते हैं कि मौजूदा इंतखाब के लिए एक सियासी तमाम जमातों से एक मुस्तहकम हुकूमत बने और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान हो, जिसको हम कहते हैं कौमी। ये हमारी बहुत सेहतमंद गुफ्तगू जारी थी। वक्त की कैद है और हमने जो कुछ भी आज यहाँ पे आपस में डिस्कस किया है, ये फैसला आपने करना है कि मिर्जा अदरीस साहब ने क्या कहा है, पीर अख्तर सूद साहब ने कहा है और ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा है, और जो मेरे सवालात के उसका भी फैसला आपने करना है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी और दोस्तों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।